So what was the last problem that we solved? Normally consolidated clay. Write down a 10-meter thick clay layer is resting over a 3-meter thick sand layer and 3-meter thick sand layer and is submerged. A fill, FILL, a fill of 2-meter thick sand with gamma equals to 20 kilonewton per meter cube is placed over the clay layer to accelerate the rate of consolidation of the clay layer. CV of the clay layer is, what is CV? Coefficient of consolidation. CV of the clay layer is 9 into 10 to the power minus 2 meter square per year, and MV is, what is MV? Pura coefficient of volume compressibility. MV is 2.2 into 10 to the power minus 4 meter square per kilonewton. Assume Taylor's relation between TV कौन? Time factor. Assume Taylor's relation between TV and average degree of consolidation. The settlement of the clay layer, calculate the settlement of the clay layer 10 years after the construction of the fill in millimeter of the fill. 10 years after the construction of the fill in millimeter. Yes, the strata that are given to you is the strata that existed in the field. You had a clay stratum which is 10-meter thick, and below that you have a sand stratum that is 3-meter thick. 10-meter thick, 3-meter thick, and below that you have this impervious stratum. This is the condition that is existing in the field, and this is symbol for groundwater table, you know that. Now on top of that clay तुम कितना मीटर का दिया हुआ है? हाँ, इसके ऊपर 2 मीटर का एक सैंड लेयर दे रहे हो, एंड पर्पस भी लिखा हुआ है क्यों सैंड लेयर उसके ऊपर दे रहे हो, टू एक्सेलरेट द कंसोलिडेशन ऑफ दिस क्ले लेयर. अब समझ में आया फिल कहां पे रखा जा रहा है? क्ले लेयर के ऊपर. जो फिल तुम लोग डाल रहे हो उसका यूनिट वेट दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. Yes, I was expecting that question. Taylor's relationship between TB and एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन. जब हमने क्लास किया था तो मैंने बोला था कि एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज द थिंग वी आर इंटरेस्टेड इन. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कंसोलिडेशन एट एनी पर्टिकुलर डेप्थ. उस टाइम में मैंने एक रिलेशनशिप दिया था. इफ एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज लेस देन इक्वल्स टू 60%, yes, then TB equals to pi by 4. Yes, read from the note and tell u square, right? If u is greater than 60%, then what was TB? 1.781 minus 0.933 log of 100 minus u%. These relationships were given by Taylor. So these are the Taylor's relationships.
तुमको तो दे दिया टेलर रिलेशनशिप, अगर टेलर रिलेशनशिप नहीं भी दिया हुआ है देन दीज आर द रिलेशनशिप्स दैट यू विल यूज। तो इसीलिए तो फॉर ए गिवन एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन you have a certain definite value of time factor. That is what I have told you. Okay, let me explain this to you. Right? You have tried for sufficient amount of time. Now let me explain this to you. See, जैसे मैंने बोला है, whenever you are trying to solve a question, first thing ये देखो कि तुमको पूछा क्या है. What is asked of you? You always try to work backwards from what is asked of you to how to get it. उसमें पूछा क्या है, चलिए देखो, क्ले लेयर्स का सेटलमेंट पूछा है आफ्टर 10 years। एक चीज बताओ मुझे, इसका सेटलमेंट होगा क्यों? व्हाई विल दिस क्ले लेयर सेटल? ये क्ले लेयर सेटल क्यों होगा? बिकॉज ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट वो सेटल होगा। प्राइमरी कंसोलिडेशन कब होता है? व्हेन देयर इज एन एडिशनल लोड। जो था वो था, उसके ऊपर जब एक एडिशनल लोड आएगा that will squeeze the pore water out and after some time you will have some settlement। तो यहाँ पे एडिशनल लोड कहाँ से आ रहा है? तुमने ऊपर में जो सैंड लेयर दिया, that applied the additional load causing the clay to settle, right? Now I am drawing the sand layer here. Let's say this is the sand layer. This is the sand layer that you have placed on the clay. तुम लोगों ने सैंड लेयर रख दिया एंड दैट सैंड लेयर प्रोवाइडेड एन एडिशनल लोड ऑन दिस क्ले लेयर, तो उसको वो कंप्रेस करेगा। ये बात तो अभी क्लियर है। नाउ जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, दो चीजें हैं, अमाउंट ऑफ सेटलमेंट एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट सेटलमेंट टू टेक प्लेस। दो चीजें हैं, इसमें तुमको दोनों का जरूरत पड़ेगा। वो क्या पूछा है? आफ्टर 10 years हाउ मच सेटलमेंट विल हैपन टू दिस क्ले लेयर। टाइम तो तुमको दे दिया, 10 year के बाद कितना सेटलमेंट होगा। नाउ टेल मी, कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में दो चीज का तुमको ध्यान रखना है, अमाउंट ऑफ सेटलमेंट एंड टाइम। टाइम कहां से आता है? टाइम कौन से फैक्टर में? टाइम फैक्टर में है। जो तुम्हारा जो टीवी है उसमें ही टाइम है। दूसरा बाकी एमवी सीवी इसको यूज करके जो भी एक्सप्रेशन है उसमें टाइम कहीं पे है नहीं। तो जब टाइम का इशू आएगा, जब भी टाइम का इशू आएगा, हाउ मच टाइम या टाइम दिया हुआ है, तुमको इंडिकेशन है दैट यू विल हैव एन यूज फॉर टीवी। वी डू नॉट येट नो हाउ, बट टीवी का यूज होगा, फाइन। फिर पूछा है कि कितना सेटलमेंट होगा, दैट मीन्स वी विल नीड समथिंग लाइक एमवी और सीसी, राइट? और यहाँ पे एमवी दिया हुआ है, देखो एमवी दिया हुआ है। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ एमवी, मतलब तुमको उस क्ले लेयर में बिकॉज ऑफ द लोड इंक्रीमेंट कितना सेटलमेंट होगा टोटल, वो पता है। यू कैन कैलकुलेट दैट, कितना टोटल सेटलमेंट होगा बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल लोड। इस क्ले लेयर में टोटल सेटलमेंट कितना होगा, कितने टाइम में कितना होगा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट नाउ। हम ये बस मैं ये कह रहा हूं, अगर एडिशनल लोड कितना है पता है, एमवी का वैल्यू पता है एंड द थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर इज नोन टू यू, उसमें टोटल सेटलमेंट कितना होगा फाइनली, जितना भी टाइम लगे। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द टाइम नाउ। टोटल सेटलमेंट हम लोगों ने बहुत सारे पिछले क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यू हैव कैलकुलेटेड द सेटलमेंट ऑफ द क्ले लेयर, याद आ रहा है? व्हाट इज दैट सेटलमेंट? द टोटल सेटलमेंट। मतलब जब कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा, मतलब 100% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जब हो जाएगा, तब टोटल सेटलमेंट कितना होगा। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर दैट? व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर दैट इन टर्म्स ऑफ एमवी, टोटल सेटलमेंट का? वेरी गुड, डेल एच इज इक्वल्स टू एमवी इंटू एच नॉट इंटू डेल सिग्मा। ये एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन तुमको देता क्या है? एट द एंड ऑफ सेटलमेंट, जब 100% डिग्री ऑफ सेटलमेंट हो जाएगा,
तो ये लेयर कितना नीचे जाएगा, दैट इज डेल्टा एच। या तो ये है सीसी के टर्म्स में क्या एक्सप्रेशन है, डेल्टा एच इक्वल्स टू व्हाट इज द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ सीसी, यू टेल मी। सीसी इंटू एच नॉट बाई 1 प्लस ई नॉट इंटू लॉग ऑफ सिग्मा नॉट बार प्लस डेल सिग्मा बार डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट बार। ये एक्सप्रेशन है। एबी के टर्म्स में भी तुम एक्सप्रेशन जानते हो, और ये समझो कि ये एक्सप्रेशन तुमको देता क्या है, क्या देता है ये एक्सप्रेशन, टोटल सेटलमेंट। टोटल सेटलमेंट का क्या मतलब है, जब 100% कंसोलिडेशन हो जाएगा ये लेयर कितना नीचे जाएगा, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट इट विल गो डाउन, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। पर उस मैक्सिमम अमाउंट रीच करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, वो टाइम फैक्टर लेके तुमको निकालना पड़ेगा। ये चीज है, राइट। अभी तुमको क्वेश्चन में पूछा है 10 साल के बाद कितना सेटलमेंट इसमें हुआ होगा, यस। तो मतलब इट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। अगर तुमको किसी तरीके से डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पता चल जाए और टोटल सेटलमेंट पता चल जाए, तो 10 इयर्स के बाद कितना सेटलमेंट हुआ होगा तुमको पता चल जाएगा। यू जस्ट नीड टू नो व्हाट इज द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आफ्टर 10 इयर्स, वो एक चीज। दूसरा कि टोटल सेटलमेंट कितना है। अभी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पता है, टोटल सेटलमेंट पता है, तो उतना जितना डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जितना परसेंटेज हुआ है 10 ईयर के बाद उतना सेटलमेंट हुआ होगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ये जो था ये बेसिक चीज था, इसको तो समझ रहे हो ना। डेल एच का क्या मतलब है, टोटल सेटलमेंट। टोटल सेटलमेंट मतलब कितना, वो नीचे की तरफ कितना डिस्टेंस जाएगा जब 100% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हो गया, पूरा कंसोलिडेशन खत्म हो गया, कितना जाएगा ये एक्सप्रेशन से मिल जाएगा। अभी मान लो ये जो डेल एच है ये अचीव करने के लिए मान लो 20 साल लगेगा, 25 साल लगेगा, हमको नहीं पता है। 10 साल के बाद ये कितना इसमें से अचीव हुआ होगा। डेल एच तो टोटल है, डेल एच मान लो हो गया तुम्हारा 30 मिलीमीटर, सपोज फॉर एग्जाम्पल डेल एच इज 30 मिलीमीटर। अब 10 साल के बाद 30 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर सेटलमेंट हुआ होगा या 20 मिलीमीटर सेटलमेंट हुआ होगा, वो कैसे पता चलेगा? फ्रॉम द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। मान लो 10 साल के बाद डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है 50%, लेट अस से आफ्टर 10 इयर्स द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन फॉर दिस कंडीशन इज 50%। मतलब 10 साल के बाद कितना सेटलमेंट होगा? अगर टोटल सेटलमेंट है कितना बोला था 30 mm, अगर टोटल सेटलमेंट 30 mm है, 10 साल के बाद डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 50% है, तो 10 साल के बाद सेटलमेंट कितना होगा? 30 का 50%, दैट इज 15 mm हुआ होगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको टोटल सेटलमेंट कितना होगा वो निकालना पड़ेगा, और 10 साल के बाद डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। हो जाएगा तो तुमको पता चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में भी बोला 30 mm अगर टोटल है, 10 साल के बाद डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है 50%, मतलब 10 साल के बाद सेटलमेंट हुआ होगा 15 mm, 15 mm हुआ होगा। तो इसलिए पहले हम लोग निकालेंगे टोटल सेटलमेंट कितना होगा, वो पहले जान लो, फिर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालेंगे। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको मिल जाएगा कि 10 साल के बाद कितना सेटलमेंट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं समझ में आ रहा है? आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। एक तो है क्ले लेयर का जो एडिशनल लोडिंग के वजह से टोटल सेटलमेंट कितना होगा, उस ये समझ रहे हो? टोटल सेटलमेंट का मतलब, टोटल सेटलमेंट मतलब मान लो ये लेयर यहाँ पे है, यहाँ पे है, इट विल गो डाउन व्हेन इट इज सेटलिंग, दिस लेयर विल गो डाउन। तो मान लो ये पूरा 100% सेटलमेंट, 100% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के बाद ये डेल एच डिस्टेंस आ रहा है, दिस इज द टोटल सेटलमेंट। 100% डिग्री, पूरा कंसोलिडेशन का प्रोसेस खत्म हो गया। उसके बाद जब कंसोलिडेशन पूरा खत्म हो गया प्रोसेस, कंसोलिडेशन क्या है? स्क्वीजिंग आउट ऑफ पोर वाटर प्रेशर, वो धीरे 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 निकलेगा क्योंकि परमिएबिलिटी बहुत लो है। धीरे धीरे निकलते हुए उसको लग जाएगा मान लो 25 साल लग गया। 25 साल के बाद जब पूरा जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इसमें बना था बिकॉज ऑफ द एडिशनल लोडिंग, वो पूरा डिसिपेट हो गया। मतलब वो जब पूरा डिसिपेट हो गया तो ये लेयर कितना नीचे जाएगा, दैट इज द टोटल सेटलमेंट। आ रहा है समझ में? टोटल सेटलमेंट डेल एच हो गया। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल सपोज ये डेल एच यहाँ पे रीच करने के लिए, सपोज डेल एच इज इक्वल्स टू 30 mm, आज जस्ट एज एन एग्जाम्पल। ये अगर 30 mm है, ये तो हम निकाल लिए ये एक्सप्रेशन यूज करके, पर ये 30 mm नीचे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा हमको नहीं पता है, ठीक है।
अभी मैं पूछ रहा हूं कि 10 साल के बाद, 10 इयर्स के बाद ये कितना नीचे गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 mm हमको पता है ये टोटल जाएगा जब 100% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हो गया। अभी 10 इयर्स के बाद व्हाट इज द एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हम लोग निकालेंगे। मान लो एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आफ्टर 10 इयर्स इज 40%। हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा। सपोज 10 इयर्स के बाद एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है 40%, तो 10 इयर्स के बाद ये कितना नीचे गया होगा, 30 इंटू 40% मतलब 0.4, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 12 mm। तो 10 साल के बाद उसका जो सेटलमेंट हुआ होगा वो होगा 12 mm, राइट। टोटल सेटलमेंट अगर पता है और आफ्टर एनी टाइम पीरियड इफ यू नो द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन then you can multiply the degree of consolidation with the total settlement to obtain the settlement value for the given time period। अभी समझ में आया क्लियरली? कोई डाउट है तो बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, that's not an issue। should I repeat myself again? so you need two things, हमेशा मन में बिठा के रखो। टोटल सेटलमेंट कैलकुलेशन के लिए टाइम का कोई जरूरत नहीं है, कितने टाइम में वो होगा वी आर नॉट बॉदर्ड, वी विल बी बॉदर्ड जब हमको पूछता है कि इतना ईयर्स के बाद कितना हुआ होगा। अगर टोटल है मतलब पूरा कंसोलिडेशन खत्म हो गया, लेयर कितना नीचे गया, दैट इज टोटल सेटलमेंट। उसके लिए टाइम का कोई हमको दरकार नहीं है, वो इस एक्सप्रेशन से या इस एक्सप्रेशन से तुमको मिल जाएगा। इसमें कोई टाइम है, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट टाइम येट। पर अगर ये पूछेगा कि एक टाइम पीरियड दे दिया उसके बाद कितना सेटलमेंट होगा, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। टोटल सेटलमेंट मतलब पूरा खत्म हो गया कंसोलिडेशन, 10 साल के बाद कितना सेटलमेंट हुआ है मतलब उसके बाद भी सेटलमेंट होगा। अगर टोटल 30 mm है, 12 mm वो रिच किया है मतलब फिर 18 mm वो उसको रिच करना पड़ेगा, उसको वो सेटलमेंट होता जाएगा। 10 साल छोड़ के 5 साल भी पूछ सकता है, कोई भी पीरियड में पूछ सकता है, पर उसी पीरियड के कॉरेस्पॉन्डिंग व्हाट इज द एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। एवरी टाइम पीरियड के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन होगा फॉर ए गिवन टाइम पीरियड। वो कैसे निकलेगा, द एक्सप्रेशन इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। कैसे, अगर u which is the average degree of consolidation, ये देखो it has a beauty in it, टेलर्स रिलेशनशिप। ये if it is less than 60% तो tb का ये एक्सप्रेशन आएगा, if it is more than 60% tb का ये एक्सप्रेशन आएगा। बट देखो बिफोर हैंड तुमको पता ही नहीं है tb लेस देन 60% है या ग्रेटर देन 60% है, तो कौन सा एक्सप्रेशन चूज करोगे? क्योंकि अगर एक्सप्रेशन मिल गया तो फिर क्या करोगे, तुम क्या करोगे, tb इक्वल्स टू क्या लिखोगे, tb इज इक्वल्स टू cv इंटू टी बाई एच स्क्वायर। यहां पे टाइम है 10 इयर्स, यहां पे डाल सकते हो, cb इज नोन टू यू, h इज नोन टू यू, सो यू कैन डू द थिंग्स। बट पहले तुमको नहीं पता है कि ये एक्सप्रेशन लेना है या ए एक्सप्रेशन लेना है, दैट इज द कैच। ये तुमको सीखना है, क्या करना है, फर्स्ट यू विल अस्यूम ए डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लिखोगे लेट अस अस्यूम, तो डेट में उतना लिखना नहीं है बट यू विल write it this way, let us assume that the degree of consolidation is less than 60%। तो tb का क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, pi by 4 u square। using this expression you will calculate the value of tb, right? Are you getting my point? now now if upon analyzing you see that the degree of consolidation that you are actually getting is more than 60%, then you will say that this assumption was not correct। तो फिर उसके बाद तुम इसको अस्यूम करोगे, दिस एक्सप्रेशन को अस्यूम करोगे। समझ गए? पहले टीबी को लोगे लेस देन 60%, लेके डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालोगे, ठीक है। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जब निकलेगा, इफ द रिजल्ट इज कमिंग आउट एज मोर देन 60%, तो तुम बोलोगे कि दिस assumption was wrong and you will use the next formula then। Are you getting my point? ये फॉर्मूला यूज करोगे, ओके, देन सॉल्व इट। हाँ, पहले क्या अस्यूम करोगे, टीबी लेस देन 60%। टीबी का ये वैल्यू यहां से मिल जाएगा, सीबी इंटू टी बाई एच स्क्वायर। टी तो पता है 10 ईयर्स, एच भी पता है, यू नो दैट, एंड सीबी का वैल्यू दिया हुआ है, टीबी निकाल लिए, पाई बाई 4 यू स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वैल्यू, क्यू इक्वेट करोगे एंड यू विल कंप्यूट द वैल्यू ऑफ यू फ्रॉम देयर। समझ में आ रहा है? क्या करोगे, पहले ये चीज निकालोगे, टीबी, सीबी इंटू टी बाई एच स्क्वायर,
जितना टाइम के बाद दिया हुआ है उतने टाइम डाल के सीभी डाल के एच डाल के टीबी निकाल लिए, फिर उसको इसके साथ इक्वेट करोगे पाई बाई फोर यू स्क्वायर, तो यू का वैल्यू मिल जाएगा. इफ द वैल्यू ऑफ यू दैट यू आर गेटिंग इज लेस देन इक्वल्स टू 60%, यू विल से ओके आवर असम्पशन वाज करेक्ट. अगर उसमें से जो यू का वैल्यू मिला दैट इज मोर देन 60%, देन इसको इसके साथ इक्वेट करोगे, दैट मीन्स इट इज मोर देन 60%. इक्वेट करके फिर उसमें से यू का वैल्यू निकालोगे. वंस यू गेट द डिग्री एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, ये टोटल सेटलमेंट पता है, एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन तुम उसके साथ मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द सेटलमेंट आफ्टर 10 years. अंडरस्टूड? हम्म यस, क्ले लेयर ही सेटल करिवो. तमरो सेटलमेंट नेला बेले तमे क्ले लेयर ही नबो, क्ले लेयर टाको ही नबो, इसी लेयर का थिकनेस लेना है. सब्जेक्ट टू द कंडीशन, यहाँ पे जो एच का वैल्यू लोगे, इफ इट इज डबल ड्रेनिंग, दोनों साइड में ड्रेनेज होगा, तो एच विल बी इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर बाई 2. एच इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा 5 होगा, बिकॉज इट विल बी डबल ड्रेनिंग. यहाँ पे भी ड्रेन कर जाएगा, ऊपर में भी ड्रेन कर जाएगा, ऊपर में भी सैंड है नीचे भी सैंड है. ये डबल ड्रेनेज का. अगर सिंगल ड्रेनेज का केस है, ये सैंड लेयर नहीं होता, डायरेक्टली इम्परवियस स्ट्रेटम पे ये क्ले लेयर होता, तो क्या होता है सिंगल ड्रेनेज. एच इक्वल्स टू कितना होता है 10. ये क्या है, सिंगल ड्रेनेज है या डबल ड्रेनेज है वो देखना है. सो सीबी इंटू टी बाई एच स्क्वायर वैल्यू निकाले, उसको इक्वेट करोगे पाई बाई 4 यू स्क्वायर के साथ, तो यू का वैल्यू मिल जाएगा. चेक करोगे इफ द यू वैल्यू लेस देन 60% है या मोर देन 60% है. अगर लेस देन 60% है तो तुम्हारा असम्पशन करेक्ट है, यू विल प्रोसीड फर्दर. अगर जो यू का वैल्यू इसके साथ इक्वेट करके निकलता है ग्रेटर देन 60% निकलता है, देन यू विल से दैट आवर असम्पशन वाज रॉन्ग, यू इज ग्रेटर देन 60%. फिर ये एक्सप्रेशन यूज करके यू का वैल्यू निकालोगे. अंडरस्टूड? नाउ सॉल्व इट. टाइम आ गया मतलब टाइम फैक्टर आएगा एंड एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आएगा. अगर टाइम नहीं है तो दोज एक्सप्रेशंस विल कम mb into h naught into del sigma bar and you will not need to bother about time. हाँ, please pay attention to the units. What is the unit of your cv? Meter square per year. It is given here. देन टाइम गिवन इन 10 years. डायरेक्टली सीबी जो है टाइम में डाल सकते हो. अगर वो लिखा होता है मीटर स्क्वायर पर मिनट सपोज, तो फिर क्या करो ईयर को मिनट को कन्वर्ट करता है. सेम यूनिट रखियो. प्लीज बी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स. एमएम कन्वर्ट कर दो. यू फर्स्ट कैलकुलेट द डेल एच इन वट एवर यूनिट, देन एमएम में कन्वर्ट कर देना. डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो पर उसमें मत जाओ. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ऑलवेज गो इन ए सिस्टमेटिक मैनर. कोई कंफ्यूजन नहीं. पहले क्या निकालना है, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल सेटलमेंट. टोटल कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो भी दिया होगा. अगर सीसी दिया है ये एक्सप्रेशन यूज करोगे, एमबी दिया हुआ है तो ये एक्सप्रेशन यूज करोगे. सो इसमें कितने पैरामीटर है, एमबी है जो तुम जानते हो, एच नॉट पूरा थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर लिखोगे, इसमें सिंगल ड्रेनेज डबल ड्रेनेज कुछ नहीं है. वेल कैलकुलेटिंग टोटल सेटलमेंट पूरा थिकनेस लोगे, सिंगल डबल कुछ नहीं. एच नॉट थिकनेस है. अभी डेल सिग्मा, व्हाट इज डेल सिग्मा? जितना एडिशनल लोड हुआ होगा, इसमें एडिशनल लोड कितना होगा इंटू 2. वेरी गुड. द थिकनेस ऑफ द सैंड लेयर इज 2 मीटर and its unit weight is 20 kilonewton per meter cube. So 20 into 2, that is 40 kilonewton per meter square. Let me write down in steps. Step मैं तोड़ के लिख देता हूँ उसको, it will be easier for you. Step 1,
Total settlement is how much? 88 mm. Now calculate the value of TB. CB into T by H square. How much you are getting? TB equals to 0.18. how? CB is how much? 9 into 10 to the power minus 2 into time T is 10 divided by why 5 H square. CB into T by H square. What is TB? 5 square. It is 25. More, let me do it on the board. Okay. जिसका जहां पे मिस्टेक हुआ होगा वो वहीं पे मैच कर लेगा. ठीक है. I'll do it on the board. Total settlement, your del H is given as MV into del sigma bar into H naught. Yes, MV का कितना वैल्यू दिया है? MV हाँ 2.2 into 10 to the power minus 4. यूनिट क्या है? यस, मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन. सो वी डोंट हैव टू बी वरीड एनीमोर. ये मीटर में है और ये तुम्हारा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. कोई दिक्कत नहीं. तो फिर 2.2 into 10 to the power minus 4 into what is del sigma? 20 into 2 40. What is H naught? 10 meter. That is the thickness of the clay layer total. How much is it coming out as? 88 into 10 to the power minus 3 meter, right? So that is equals to 88 millimeter. Okay, now that is total del H. We have calculated that now. Now we will calculate the value of TB using the expression CB into T by H square. मतलब 10 years के बाद what is the value of TB, टाइम फैक्टर. आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? एक गिवन टाइम पीरियड के बाद यू विल बी गेटिंग ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टीवी एंड फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टीवी यू विल गेट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन. ये आइडिया है. तो व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 10 इयर्स इज इक्वल्स टू सीबी. सीबी कितना दिया हुआ है? 9 into 10 to the power minus 2. यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर पर ईयर. तो मतलब डायरेक्टली हम 10 ईयर यहाँ पे डाल सकते हैं. दैट इज 10 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर. एच स्क्वायर एच बोला था, अगर ये डबल ड्रेनेज है तो हाफ ऑफ द थिकनेस जाएगा. 10 मीटर था क्ले लेयर का थिकनेस और डबल ड्रेनेज है. नीचे सैंड ऊपर में सैंड डाले हो, डबल ड्रेनेज. सो इट विल बी 5 स्क्वायर. सो व्हाट इज द रिजल्ट? टीबी 0.036. नाउ यू हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ टीबी. ये फिक्स्ड है, ये नहीं बदलने वाला है. उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालोगे. पहले अस्यूम करोगे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन लेस देन 60% है. ठीक है, बट ये दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज. तुम्हारा जो टेलर एक्सप्रेशन यूज होगा डिपेंडिंग ऑन, अगर तुमने लिया है अस्यूम किया है लेस देन 60%, आ गया यू ग्रेटर देन 60%, तो तुम दूसरा एक्सप्रेशन लोगे. पर ये नहीं बदलेगा. दिस विल रिमेन 0.036. सो नाउ अस्यूमिंग यू लेस देन इक्वल्स टू 60%, तो ये तुम्हारा जो 0.036 दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 इंटू यू स्क्वायर, राइट.
तो सॉल्व एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू। ये अलग है। u is equals to 0.214 and which is equals to 21.4%, right? तो your assumption is correct, u is coming out as less than 60%. now ये हो गया तुम्हारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। टोटल सेटलमेंट है 88 mm, मतलब 10 साल के बाद कितना सेटलमेंट होगा? 88 mm से कितना खत्म हो गया होगा? ऐसी S equals to your 88 mm into 0.214 कितना आ रहा है बताओ? 18.832 mm। अंडरस्टूड? मतलब 10 साल के बाद 18.832 मान लो 19 mm खत्म हो गया है और बाकी जो बचा हुआ है वो और टाइम लेगा, ठीक है? पूरा पर जब पूरा कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा, 100% कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा, 88 mm वो सेटल कर जाएगा। अभी 10 साल के बाद वो सेटल किया है 18.832 mm। इतना स्लो होता है कंसोलिडेशन का प्रोसेस, देख रहे हो? 10 साल के बाद आफ्टर 10 years यू आर हैविंग ए सेटलमेंट ऑफ 18 mm, 18.83, और तुमको जाना है 88 mm तक। यू टेल मी हाउ मच टाइम? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द कंसोलिडेशन। लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंसोलिडेशन। elapsed time with the theta अगर theta का आधा जो है तो इतना टाइम लगेगा। अरे 88 लगे पे 10 years लगेगा। then आओ 90 years से sorry आओ हाँ आओ you will answer your question now। आओ 90 से आउटा केते से t टा सेट तो पचारछि तो that t what is this t that is the time elapsed सेटा ही तो पचारछि। he is asking you that for 100% degree of consolidation what is this t, तो इसको कैसे assume कर लोगे t को? तो एक चीज बताओ फ्रॉम कॉमन सेंस क्या assume करोगे? assume क्या करना? लेना है, क्या लेना है? क्या लेना है? लेना क्या है? yes, if your degree of consolidation is greater than equals to 60%, 100% obviously is greater than 60%, तो what is the value of tv for that? उसको निकालोगे, फिर इसके साथ इक्वेट करोगे। what is the expression? 1.781 minus 0.933 into 100 minus u percent, तो u कितना है वहां पे? 100%, तो put 100 there, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टीवी। क्योंकि ये कैसे काम कर रहा है, मैंने हाउ डिड आई नो द सॉल्यूशन विल बी लाइक दैट, मुझे कैसे पता चला क्वेश्चन सुन के? क्योंकि मैं दो चीजें जानता हूं। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन अगर एक है एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एनी वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट यू विल हैव ए सर्टेन डेफिनेट वैल्यू ऑफ टीवी, राइट? एक टाइम पीरियड के बाद अगर टाइम पीरियड भी मुझे पता है आई विल बी गेटिंग ए सर्टेन वैल्यू ऑफ टीवी। इसमें से एक चीज तुमको पता होगा, 10 साल के बाद कितना हो रहा है एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, या एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन दे दिया, टाइम पूछा। दो टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। फर्स्ट लिसन टू मी हियर, देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। यू विल बी गिवन टाइम एलाप्स्ड, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, 15 साल के बाद, व्हाट इज द एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, ये एक है। या तो एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन दे देगा, टाइम इलाप्स्ड पूछेगा, राइट? ये क्वेश्चन वही है, तुमने जो मुझे डाउट पूछा ये क्वेश्चन वही है। तुमको एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन दे दिया, व्हाट इज दैट? 100%। अगर टाइम देता तो पहले इसको निकालते, उसको अस्यूम करके डालते। सुनो इधर, अगर ये टाइम एलाप्स्ड दिया हुआ है तो पहले इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करोगे,
एक डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एस्यूम करोगे, उसके साथ इक्वेट करके जो हमने किया करोगे। अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन दे दिया है तो एस्यूम करने का कुछ नहीं है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन यू विल यूज, यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टीवी एंड यू विल इक्वेट इट विथ दिस, सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। इसमें क्या निकलेगा? टोटल टाइम इलाप्स्ड। मान लो वो निकलता है 50 साल, उसमें से 10 साल जा चुका है, बाकी 50 माइनस 10, बाकी 40 साल लगेगा। कैलकुलेट इट। नाउ दिस यू हैव अंडरस्टूड। I am wiping it out. हंड्रेड परसेंट डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन टा तुमको मिलिबो जेतेबेले पूरा टाइम इनफिनिटी हो। कर्व टा कोन आसिम्प्टोटिक हो जाउची, जो कर्व टा होची दैट विल बिकम आसिम्प्टोटिक, माने इट विल गो ऑन हैपनिंग मैथमेटिकली। तेणु प्रैक्टिकली तुम कौन कर भाव 99% कि 99.99% हो गला, यू विल से दैट द टोटल कंसोलिडेशन इज ओवर बिकॉज द इक्वेशन इज डिजाइंड दैट वे। 100 माइनस यू परसेंटेज, 100 माइनस यू परसेंटेज यू जगह 100 पकई दियो, पकईदेले कौन हम लॉग ऑफ जीरो, लॉग ऑफ जीरो माने केते माइनस इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी एटी गोटे माइनस साइन अच्छी प्लस इनफिनिटी, सो टीवी बिकम्स इनफाइनाइट, टीवी विल बिकम इनफाइनाइट। तेणु तुम बाहर करी एक्जाक्टली यूजिंग दिस एक्सप्रेशन what is the time after which we will achieve 100% consolidation। 99.999999 पे बाहर कर परिबो, even going up to 99.999999 पे बाहर कर परिबो, but 100% पे बाहर कर परिबो। so for 100% degree of consolidation time required is theoretically infinity। now write down another question। a 20-meter thick clay layer is sandwiched between a silty sand layer and a gravelly sand layer। The layer experiences 30 millimeter settlement in 2 years। If the coefficient of consolidation of the layer is of consolidation of the layer is 0.003 centimeter square per second, the deposit will experience a total of 50 millimeter settlement in the next dash years। नो टोटल ऑफ लिख दिया है, मतलब वो टोटल सेटलमेंट डेलेज नहीं है, वो सिर्फ टोटल ऑफ 50 mm लिखा है 50, क्योंकि अभी तो हमने डिस्कस किया टोटल सेटलमेंट के लिए कितना टाइम है निकाल नहीं पाओगे, सो दैट मीन्स इट इज नॉट द टोटल सेटलमेंट। 50 mm एक सेटलमेंट दिया है, 30 mm के लिए दे दिया है कुछ वैल्यूज, 50 mm के लिए टाइम पूछा है, बट 50 mm इज नॉट द टोटल सेटलमेंट। टोटल ऑफ लिखा हुआ है, इसका मतलब नहीं है कि वो टोटल सेटलमेंट है। हमने डिस्कस किया ना, पूरा सेटलमेंट खत्म हो जाने के लिए इन्फिनिटी टाइम लगेगा, ठीक है। सो दैट यू कैनॉट डिटरमाइन फाइनाइटली कि इतना टाइम में कंप्लीट 100% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हो जाएगा। वो एक दूसरा स्टेट में दिया है, एक टाइम पीरियड कुछ में हुआ 30 mm, तो बाकी टाइम पीरियड कितना लगेगा ये 50 mm होने के लिए, बट दैट इज नॉट द टोटल सेटलमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? S1 S2 करके रिप्रेजेंट कर सकते हो सेटलमेंट को, जो इंटरमीडिएट सेटलमेंट है। अगर टोटल को डेल एच करके रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इंटरमीडिएट सेटलमेंट का वैल्यू है उसको S1 S2 करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। यस, इट इज ए डबल ड्रेनेज केस। सैंड है ना, सिल्टी है बट इट इज सैंड, इट इज ए डबल ड्रेनेज केस। वेरी गुड। It is your choice, all of them you bring to a one unit। suppose cb is given in centimeter square per second and your time कितना टाइम में हुआ है वो 30 mm सेटलमेंट के लिए ना 2 years से, तो you convert these 2 years into seconds and convert that meter into centimeter। कैसे निकालोगे 2 years को सेकंड में, पता है? नो 2 years in seconds, 2 years मतलब how many days, 1 day how many hours,
1 आवर हाउ मेनी सेकेंड्स, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 365 इंटू ईच डे का कितना आवर है, 24 आवर्स इंटू 24 इंटू 3600। हैव यू फिगर्ड आउट हाउ टू डू इट? हैव यू फिगर्ड आउट हाउ टू डू इट? वेरी गुड। कौन करियो आफ्टर यू हैव कैलकुलेटेड टीवी फॉर द फर्स्ट केस। एक चीज बताओ, नहीं टाइम टाइम तो दिया हुआ है ना, 2 इयर्स। ये जो 30 कंसोलिडेशन हुआ है वो 2 इयर्स में दिया हुआ है। अभी 50 कंसोलिडेशन के लिए, 50 सेटलमेंट के लिए कितना टाइम चाहिए वो पूछा है, बट फॉर 30 द टाइम इज गिवन, राइट, 2 इयर्स। अभी 50 जो होगा, 30 से 50 मतलब जो एक्स्ट्रा 20 होगा उसके लिए कितना टाइम लगेगा वो पूछा है। वो टोटल नहीं है, वो लिखा है ए टोटल सेटलमेंट ऑफ। हाँ ଆମେ ଏଠି ଟିଭି କାଢିଲେ ନା, हम्म ତ ଏଇଟା କାଢିଥିଲେ ନା ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଟିଭି ଇଣ୍ଟୁ ଟୋଟାଲ ସେଟଲମେଣ୍ଟ। ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ଦେଇ ଦେଇଛି সেটা 50 টা টোটাল সেটেলমেন্ট নুহ না। 30 ପାଇଁ। 30 पे ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇଛି 30, हम्म ଦେନ୍ ଟିଭି ଟିଭି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ତ ସେଥିରୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କାଢିଦେଲେ हम्म ତ ସେଠି ଆମକୁ yes, that is what you will have to do। माने you are given the value tv, you calculate and you know a given value of tv corresponds to a particular value of degree of consolidation, right? For the value of tv that you have calculated, you will have a corresponding value of degree of consolidation. First you will assume, let us assume for that 30 let us assume that 30 settlement is less than 60% degree of consolidation, so you will use tb equals to pi by 4 into u square, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालोगे। अगर 60 से कम आता है तो, अगर 60 से वो ज्यादा आ रहा है 30 तो तुम दूसरे फॉर्मूला में चले जाओगे, डन। तो वहां से तुमको डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मिल जाएगा। अभी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मिलने के बाद मान लो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मिलता है 40%, तो 40% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन में तुम्हारा 30 हो रहा है, मतलब टोटल सेटलमेंट कितना है कैलकुलेट हो जाएगा, हो जाएगा। टोटल सेटलमेंट कैलकुलेट होने के बाद तुमको जाना कहां तक है, 50 तक अल्टीमेटली। तो 50 सेटलमेंट, टोटल सेटलमेंट तुमको पता है, मतलब 50 सेटलमेंट के लिए डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितना है पता चल जाएगा। फिर उसको इक्वेट करोगे टीबी सीबी इंटू टी बाई एच स्क्वायर के साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और शुड आई सॉल्व इट? यू विल ट्राई, ओके। टीबी निकल गया, उसके बाद अस्यूम करो, अस्यूम यू लेस देन 60%, यस। उसके बाद पाई बाय 4 यू स्क्वायर इक्वल्स टू जो टीबी के वैल्यू निकाले हो, यस, कितना है u इक्वल्स टू 0.49, मतलब 49%, मतलब असम्पशन इज ओके, लेस देन 60%। सो 49% हो रहा है तुम्हारा 30 तो टोटल कितना है, टोटल का 49% है 30 तो टोटल कितना है, लेट टोटल सेटलमेंट इक्वल्स टू डेल्टा एच, सो डेल्टा एच इंटू 0.49 इक्वल्स टू 30, डेल्टा एच कितना है पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जब 30 सेटलमेंट हुआ है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितना आ रहा है, 49%। सो जो टोटल सेटलमेंट होगा उसका 49% सेटलमेंट इक्वल्स टू 30 सो टोटल सेटलमेंट कितना है, 30 डिवाइडेड बाई 0.49, राइट। क्योंकि इधर देखो, मान लो जो टोटल सेटलमेंट है तुम्हारा इक्वल्स टू डेल्टा एच, ठीक है। इफ द टोटल सेटलमेंट इज डेल्टा एच और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितना आ रहा है 49%, मतलब क्या हुआ होगा, टोटल सेटलमेंट इनटू 49% मतलब कितना 0.49 इक्वल्स टू 30 जो सेटलमेंट किसी भी टाइम पीरियड के बाद होता है दैट इज इक्वल्स टू टोटल सेटलमेंट इनटू द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज द सेटलमेंट आफ्टर ए टाइम पीरियड। ये क्या है, ये है टोटल सेटलमेंट, टोटल सेटलमेंट, ये टोटल सेटलमेंट है, ये तुम्हारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है, एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, एंड ये है सेटलमेंट आफ्टर एनी पीरियड ऑफ टाइम, सेटलमेंट आफ्टर
any period of time। ठीक है, ये सेटलमेंट आफ्टर एनी पीरियड ऑफ टाइम जो है वो 30 है। वो पीरियड ऑफ टाइम कितना है यहाँ पे 2 years है, और वो 49% ऑफ द टोटल सेटलमेंट है जो तुमने अभी निकाला। अभी टोटल सेटलमेंट तुमको मिल जाएगा, यू विल गेट द टोटल सेटलमेंट फ्रॉम दिस इक्वेशन। टोटल सेटलमेंट मिल गया, टोटल सेटलमेंट मिल गया मतलब अभी जो 50 टोटल सेटलमेंट कितना हुआ 61.22 जो भी है रिजल्ट। सो अभी तुमको कहां तक जाना है 50 सेटलमेंट, उसके लिए टाइम निकालना है। कैसे निकालोगे टाइम, अगर फॉर ए गिवन सेटलमेंट तुमको डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पता चल गया तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन यू हैव अ टाइम फैक्टर, और टाइम फैक्टर में एक पैरामीटर है इलाप्स्ड टाइम। तो पहले निकालो ये जो 50 सेटलमेंट है वो एट 50 सेटलमेंट व्हाट इज द एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, निकालो। कैसे निकालोगे 50 divided by that 61.23 or whatever you are getting 61.22। हाँ 50 पाई केते डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, एटा बर्तमान 49% तमर हो जाइछि, सेथिबे 30 सेटल करि गलाडी। तो 50 सेटलमेंट जब होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या है। फॉर 50 सेटलमेंट व्हाट इज द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 50 डिवाइडेड बाय 61.22, कितना परसेंटेज आ रहा है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन फॉर 50 सेटलमेंट 0.816 मतलब 81.6%। 81.6% कंसोलिडेशन के लिए यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टीवी यूजिंग द एक्सप्रेशन u ग्रेटर देन 60%, उसको इक्वेट कर देना है और टाइम निकल जाएगा। किसके साथ इक्वेट करोगे cb इंटू टी बाई एच स्क्वायर एक्सप्रेशन के साथ। सो तब लिखो सो फॉर 81.6% consolidation EV equals to 1.781 minus 0.933 log of 100 minus u percentage। Calculate that value of TV। 100 minus u percentage मतलब पूरा परसेंट डालेगा 100 minus 81.6। जीरो पॉइंट सिक्स जीरो और एक डिजिट तो लोगे ना 0.60 जीरो जीरो ओके देन 0.60। नाउ उसको किसके साथ इक्वेट करोगे जो वैल्यू मिला cb इंटू टी बाई एच स्क्वायर। पर माइंड यू ये जो टाइम मिलेगा टाइम एलाप्स्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कंसोलिडेशन। 30 से 50 निकालने के लिए उसमें से 2 साल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बिकॉज द एक्सप्रेशन cb इंटू टी बाई एच स्क्वायर उसमें टाइम क्या है इलाप्स्ड टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कंसोलिडेशन। तो अभी 50 के लिए जो टाइम निकलेगा उसमें से जो 30 के लिए टाइम ऑलरेडी इलाप्स्ड कर गया है वो सब्ट्रैक्ट करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दिस टाइम इज फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ कंसोलिडेशन टू दैट पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, बीच में से नहीं। द रिजल्ट विल कम इन सेकेंड्स, यू हैव टू कन्वर्ट इट बैक इनटू इयर्स। हाँ 30 हो गलानी। हाँ 20 mm पे जो टाइमटा बाहर टाइमटा किंतु तुमर टाइम एलाप्सटा कोड कहलो बिगिनिंग ऑफ कंसोलिडेशन रु आरंभ करिकी एनी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जाके दैट इज टाइम t इन द एक्सप्रेशन cb इंटू टी बाई एच स्क्वायर। सो जेतेबेले 50 mm पे भी से एक्सप्रेशन लगोच दैट इज फ्रॉम बिगिनिंग कंसोलिडेशन टू 50 mm जीवा पे जेति टाइम लागिवो सेटा बाहरिवो से जो t टाइम एलाप्सटा ऑलरेडी 30 mm पे जेति टाइम पड़ेछि ताथरु सब्ट्रैक्ट करिया पड़िवो। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जो टाइम टा अच्छी इन द एक्सप्रेशन cb इंटू टी बाई एच स्क्वायर दैट टाइम इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कंसोलिडेशन टू दैट पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन फ्रॉम 0% टू दैट परसेंट, नॉट 10% टू 20%। अगर 0 से 20% निकालोगे 0 से 10% निकालोगे सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट निकलेगा। 0 to 50 हाँ 0 to 50 पे केते टाइम लागिवो सेटा टीटा बाहरला 30 to 50 जाके 30 to क्वेश्चन कौन पचारछि 30 to 50 क्वेश्चन यस 20 mm पे, बट योर रिजल्ट इज कमिंग 50 mm के लिए कितना टाइम लगेगा 30 mm के लिए ऑलरेडी दे दिया है 2 साल, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। सो फॉर 50 mm कंसोलिडेशन द टाइम रिक्वायर्ड इज 6 you are calculating 6.34 years। For 20 mm consolidation already given
time required is 2 years. So 6.34 years minus 2 years is 4.34 years is the additional number of years required for 20 mm consolidation. Done. And please notice one thing in this. For the first 30 mm consolidation, how much time did we need? 2 years, right? उसके बाद 30 mm के लिए लगा 2 साल, 30 से 50 मतलब 20 mm के लिए लग रहा है 4 साल से भी ज्यादा टाइम. मतलब as the time is elapsing, the rate of consolidation is decreasing. पहले 30 mm के लिए 2 साल, फिर बाद के 20 mm के लिए 4 साल से भी ज्यादा. सो मतलब 100% होने के लिए इन्फिनिटी टाइम लगेगा. दैट यू कैन नॉट कैलकुलेट फाइनाइटली कि 100% अब हो गया. थियोरेटिकली it is infinite time. Understood? Now write down another question. The time for a clay layer to achieve 85% consolidation is 10 years. If the layer was half as thick, THICK, उसकी मोटाई लेयर का अगर हाफ होता, 10 times more permeable and 4 times more compressible, then the time that would be required to achieve the same degree of consolidation is, options are A 1 year, B 5 years, C 12 years, and D 16 years. I had not given you an expression which relates your coefficient of permeability with Cv, Mv and gamma W. This is the expression K equals to Cv into Mv into gamma W. The other expression, this expression you already know about. Cv equals to, from that it is derived that K is Cv Mv gamma W. So this gives you one way to determine the coefficient of permeability also, if you know Cv Mv, right? And why did I write it here? Because it will be required in the solution of this question. Just know it. पर तुम सोचो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. ये जबरदस्ती इसको खींच के लगाने के बारे में मत सोचना. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर इसका जरूरत पड़ेगा तो यूज करना, ठीक है? नहीं तो लिख दिया तो तुम सोचो कि इसको कैसे ही खींच के डाल देना है. हाँ 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 हाँ, मतलब 85% कंसोलिडेशन होगा, और अभी लेयर का कैरेक्टरिस्टिक बदल गया. एक गिवन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेयर के लिए 85% कंसोलिडेशन के लिए एक टाइम चाहिए, इतना टाइम लगता है, 10 साल लगता है. अगर लेयर का जो कॉन्फ़िगरेशन है तुम बदल दोगे, देन हाउ मच टाइम इट विल टेक, राइट? एक चीज मन में रख लो, टाइम आ रहा है मतलब टाइम फैक्टर का यूज कहीं ना कहीं होगा. इफ टाइम इज कमिंग मीन्स समहाउ टाइम फैक्टर विल कम इनटू पिक्चर. और हो सकता है तुम्हारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन भी काम में आ जाए. तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन दे दिया है, टाइम फैक्टर काम में आएगा ही आएगा, क्योंकि टाइम दे रहा है. एक ही एक्सप्रेशन तुम जानते हो जिसमें टाइम एलाप्स्ड है, एंड दैट इज टाइम फैक्टर. Yes. Now you are getting a flare of the GATE questions. This is why they say the GATE exam is a little bit difficult. So is it 4 times more compressible than the time? No, not the time, than the previous layer. 4 times more compressible. Read the question again. क्या दिया है? 2 लेयर है, उसके बीच कंपैरिजन है, उनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, उसका जो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, परमेबिलिटी है, ये सब डिफरेंट है, बट दे आर इन ए पर्टिकुलर रेशियो. और दोनों लेयर में डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन सेम है. मान लो अलग अलग है दोनों, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज द सेम. डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन अगर सेम है तो टाइम फैक्टर भी सेम है, राइट? राइट. लेट मी सॉल्व इट फॉर यू. इफ द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज सेम, 2 लेयर एसेंशियली तुमको दिया है जिसके जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक दूसरे के साथ कुछ डेफिनेट रेशियो में है, राइट?
पर दोनों का डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन दिया है 85% है, तो टाइम फैक्टर सेम है दोनों के लिए। नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम फैक्टर? टीवी इज इक्वल्स टू सीबी इंटू टी बाई एच स्क्वायर। तुमको पूछा क्या है, जो मैंने पहले बताया था, व्हाट इज आस्क्ड, पूछा क्या है? अगर एक के लिए 10 साल लग रहा है तो दूसरे के लिए हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड? यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यू विल वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम दैट. व्हाट डू यू नीड? द टाइम elapsed, that is this t, for the given degree of consolidation. इतना चाहिए हमको. Now see, let us take the two layers as, let us say layer 1, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं है, अलग अलग है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, इसलिए लेयर 1 लेयर 2 लिख रहा हूं. लेयर 2 डन. मान लो लेयर 1 जिसके लिए दिया हुआ है योर 10 years for 85% degree of consolidation, let us say its thickness is h1. उसके बाद और क्या पैरामीटर कंपेयर किया है? एक तो थिकनेस दिया है, दूसरा परमिएबिलिटी. लेट अस से दिस इज k1, k1 एंड मोर कंप्रेसिबल. तो कितना कंप्रेस होगा वो कहां से आता है? एमवी से आएगा या एवी से आएगा, कहीं से भी आ सकता है. कंप्रेसिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? एक तो कंप्रेसिबिलिटी है, कितना कंप्रेसिबल है, वो एमवी से आएगा. लेट अस से इसका वैल्यू है mv1. ठीक है, डन. कॉरेस्पॉन्डिंगली लेयर 2 के लिए व्हाट इज द हाइट ऑफ लेयर 2? हाफ ऑफ दिस. सो h2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ h1. डन. k2 क्या दिया हुआ है? परमिएबिलिटी कितना टाइम्स है? 10 टाइम्स. हाँ, तो फिर ये हो जाएगा 10k1. यू आर करेक्ट, 10k1. दिस इज कंप्रेसिबिलिटी में क्या लिखा है? 4 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल. कौन सा? सेकेंड लेयर है. देन mv2 इज 4mv1. डन, यही दिया हुआ है. नाउ टीवी इज इक्वल्स टू सीबी इंटू टी बाई एच स्क्वायर. वी ऑलरेडी नो दोनों के लिए टीवी सेम रहेगा. यस और नो? बिकॉज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज सेम. बाकी तुमको जो बदलना है, जो करना है कर लो, पर टीवी तो सेम ही रहेगा ना. सो नाउ वी विल राइट टाइम elapsed t is equals to tv into h square by cv. Yes, this is the expression we'll write. Now let me wipe this out. In place of cv I can write, अभी तुमको जो एक्सप्रेशन दिया है, what is that expression? k equals to cv into mv into gamma w. That implies cv is equals to how much? k by mv into gamma w, right? I am using this in place of cv. अभी लेयर 1 लेयर 2 का कुछ नहीं लिया हूं. अभी इन जनरल व्हाट इज द एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग? सो दैट विल बी टीवी into h square divided by, in place of cv I am writing k by mv into gamma w. cv mv gamma w, it is divided mv by gamma w, so cv is equals to k by mv into gamma w. Now this expression will become tv into h square into mv into gamma w divided by k. Done. Done. Now let us put the values of layer 1. This is time.
T1 is equals to TB into H1 square for layer 1 into MV1 into gamma W divided by K1, right? For layer 2, T2 will be TB into H2 square into MV2 into gamma W divided by K2, right? Now, what are the relationships that we had written earlier? H2 जगह कौन लिखी परिबा? Half of H1, right? I can write this. I can write TB into half of H1 square. इसके लिए क्या लिखोगे? कितना टाइम्स मोर कंप्रेसिबल था? 4 MV1. You will write 4 MV1 into gamma W divided by ये कितना था? 10 times more permeable, 10 K1, राइट? मैंने कुछ नहीं किया, ये टाइम के लिए जनरल एक्सप्रेशन है. टाइम के लिए जनरल एक्सप्रेशन आई सिंप्लीफाइड इट एंड मॉडिफाइड इट टू दिस फॉर. फिर T1 के लिए एक्सप्रेशन लिख दिया, T2 के लिए एक्सप्रेशन लिख दिया. अभी T भी तो दोनों में सेम है. अभी मुझे पूछा क्या है? T2 पूछा है. सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मतलब T भी सेम, मुझे T2 पूछा है. सो लेट मी टेक द रेशियो ऑफ T1 by T2 or T2 by T1. If you take the ratio, all things will cancel out and you will get the answer directly. Just take the ratio and check out. Write down T2 by T1 equals to तो इस फॉर्म में आने के बाद दिख ही रहा है कि रेशियो लेना है. I can't write anymore because this thing is not working. You will not need a calculator. Why would you need a calculator? सब कटि जीव ना, देखु ना केमती कोटा न कटियो मते कहले. ए आगो से बोर्ड रु देखि मते को तापर कॉपी बनाओ. Look at the board and tell me which factor will not be cancelling out. Divide कले H1 cancelling out, TB cancelling out, MV1 cancelling out, gamma W cancelling out, K1 cancelling out. Half divided by 10 केमती हो? Now it will work. I have kept it for some time. Hopefully. देखो T2 by T1 is equals to how much? Directly you write here. T2 जगह लिखिबो TB into half H1 square means H1 square by 4, right? Into this is 4 MV1 into gamma W, right? Divided by 10 K1, right? Now in place of T1 what you will write? TB into H1 square into MV1 into gamma W divided by K1. डन. देखो यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया. जब 4 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में क्या रहेगा? H1 स्क्वायर MV1, H1 स्क्वायर MV1 गॉन. गामा W कैंसल्ड, TB कैंसल्ड हो गया. तो रह क्या जाता है? इसका 10 K1, इसका K1, मतलब ये यहाँ पे क्या है? डिवीजन में है तो नीचे चला आएगा. ये डिवाइड है तो ऊपर चला जाएगा. सो K1 by 10 K1 which is equals to 1 by 10. Do you need a calculator?
सो इफ T2/T1 इज 1/10, मतलब जो दूसरा केस तुमको दिया है जिसमें चेंज्ड प्रॉपर्टीज है उसमें लगेगा 1 ईयर, क्योंकि T1 कितना दिया हुआ है 10 ईयर्स, T1 is given to be 10, T2 equals to T1/10 equals to 1 year. ବୁଝିପାରିଲେ? I will explain it again. এই जो एक्सप्रेशन टा तुमको मिली सेटा कोठु मिलला? हम्म 1/10. So if T2/T1 is equals to 1/10, done. T1 टा faster, that implies T2 is equals to T1/10. T1 टा देइछि केते तुमको? केते देइछि? 10 years देइछि. So 10/10 equals to 1. सेते तो पचारछि से 85% कंसोलिडेशन पई केते टाइम दरकार. प्रथम लेयर जोटा देइथिला ता कैरेक्टरिस्टिक्स देखि 10 वर्ष लागुतला. तापर सेकंड लेयर रो कैरेक्टरिस्टिक्स पे तुमे रेशियो बाहर कर देलो इलाफ्ट टाइम रो. इलाफ्ट टाइम रेशियो बाहर कर देलो T2/T1. नाउ T1 is known to you, you get T2. Done. Tell me how to do it. 10 years is that is 10 times more permeable. So 10 years तो अधिक होगा. Why? More permeable but compressible. Yes, you can also consider that way. This is a good approach. Just right. What he's suggesting is the expression for time is, what is the expression? TB into h square divided by CB. In terms of K, what was the expression जो अभी हम लोगों ने डिराइव किया? What is the expression? K into K equals to CB into MV into gamma W. That implies CB is equals to K by MV into gamma W. Now you use this expression here and you will get TB into h square into MV into gamma W divided by K. This is the expression. तमे जोटा कहूच एटा होची 10 times more permeable, that is okay. एटी 4 times more compressible रहला. एटी बेटा हाफ ही जाउची ना. बुझी परछो कि नहीं? तेनु तीनटा जगर कंबाइंड इफेक्ट ता केते आसीबो सेटा तमे बिफोर हैंड कहि परिबोनी, बिकॉज़ इट इज डिपेंडिंग ऑन H also, इट इज डिपेंडिंग ऑन MV also. हां एटा करि परिबो. एटा कोन करि परिबो? एटी डायरेक्टली कर दे परिबो. H ता जदी हाफ होची, you don't have to solve the entire question. H is becoming second case. If the first case is H, second case it will be half H. Half H means H square by 4, and in the second case it will be 4 MV. So it 4 cancel हो गला. Now 10 times more permeable. So it will be less than 10. Are you getting my point? Instead of going for all that calculation, तुम इसी step से answer निकाल सकते हो. His suggestion was very good, but you have to do this. You will put H by 2 in place of H. So it will be H square by 4. Now it will be 4 MV. 4 will cancel out. So it will remains as such H square into MV. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मतलब सेकंड केस में भी अपर टर्म में H square into MV आएगा, क्योंकि हाफ जो होगा 4 जो नीचे आएगा ये 4 MV, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो मतलब एक ही फैक्टर है जो डिफरेंस डालेगा वो है K. सेकंड केस में क्या K क्या है? 10 टाइम्स मोर परमिएबल, मतलब इसका 10 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब द वैल्यू विल बी लेस देन दैट. सीधा 10 यहीं पे ही डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट गोइंग फॉर दैट. डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि ये तो सेम हो गया ना 1. ऑप्शन एलिमिनेशन में भी जा सकते हो, वो उससे 10 से ज्यादा होगा ही नहीं. बाकी सब ऑप्शन 10 में से ज्यादा है, और एक नहीं, एक 6 ईयर दिया हुआ है ना, 5 ईयर्स दिया हुआ है. सो ऑप्शन एलिमिनेशन वैसे नहीं होगा, ऐसे डायरेक्टली देखोगे यहाँ पे 10K हो रहा है
बाकी ये तो सेम ही है, डिवाइडेड बाई 10, ये भी कर सकते हो डायरेक्टली, पूरा निकाल के उतना लिखने का जरूरत नहीं है। समझ में आया तुमको या फिर से एक्सप्लेन कर दे? डन। half 1/2 plus 1/4 हाँ, 4 4 4 कैंसिल ହେଇଗଲା, 4 4 कैंसिल ହେଇଗଲା, खाली k टा ରହିଲା, k टा तार 10 टाइम्स अछि, तमे तळे 10 डिवाइड होउछ, दैट इज डन। अंडरस्टूड? तो आज जाके तुम लोग इसको फिर से रिवाइज करोगे, ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव डन, यू विल टेक द क्वेश्चन, क्लोज योर कॉपी, ट्राई टू सॉल्व इट, राइट? Once you do it tonight, how it was being done, your understanding will improve and you will also remember, right? आज जाएगी गोटे थर निहाती करियो सबुतक क्वेश्चन जेतिक आमे आज डिस्कस करछे, कारण आज बहुत नुआ जिंस शिखिछ। ठीक अछि।